tomorrow is going to be much more better because from tomorrow I'm going to be much more effective. Let's check this. Kajol. Okay. Kajol versus uneducated politician. News Reviews, episode 3. We're here for this, boys. Let's check this. हेलो न्यू इंडियंस। आज हम बात करेंगे हमारे मम्मी पापा के फेवरेट टॉपिक की। Okay. I have a thing to tell. ये जो अभी आपने दृश्य देखे, आज हम बात करेंगे। अच्छा ये वो मूवी का नहीं है, बट कभी खुशी कभी गम नहीं DDLJ is the movie, if you remember, is basically, I have heard this, is basically a crime thriller जहाँ पे the perpetrator or the criminals gets away without facing anything, and that was a big plot ताकि शाहरुख कैसे रानी मुखर्जी राइट, रानी को मार के कैसे काजोल से शादी करता है बिकॉज ऑफ द ऑल द मनी जो रानी के पास था, फॉर दैट रीजन ओनली, and that is the main thing behind it. I thought this is going to be DDLJ, but looks similar, but the kid is a guy but there the kid was a girl, so yeah, completely different movie, I guess. completely different rant. Anyhow, let's go. फिर हम लोग अली जी भी देखेंगे, we want to understand this. हमारे मम्मी पापा के फेवरेट टॉपिक की। Okay. Education is not only the foundation on which our civilization had been built. It is also the architect of humanity's future. Saying the guy who can't even produce his own merit certificates, right? Let's see. सिंपल हिंदी में इसका मतलब है एजुकेशन तुम्हें आईएएस से लेकर भगवान तक बना सकता है, इतनी पावर है एजुकेशन में। पर एजुकेशन की पावर का पॉलिटिकल पावर से हमारे देश में कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक नेता दूसरे नेता के एजुकेशनल बैकग्राउंड पर अक्सर अटैक करता रहता है। That's true. एक मिनट What about the volume? The volume is too low. ये अनपढ़ आदमी है, ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है। पर इसी टाइप की मन की बात कोई सेलिब्रिटी हमारे Let's begin. पॉलिटिशियंस पे कर दे, ये न्यू इंडिया में बिल्कुल अलाउड नहीं है। And change, especially in a country like India, is slow. It is very, very slow because we are, for one, steeped in our traditions and steeped in our thought processes. And of course, it has to do with education. Yes. You have political leaders who do not have an educational system background. I'm sorry, but I'm going to go out and say that. But are being ruled by leaders, so many of them, who do not have. We don't know किसके बारे में बात कर रही है, but someone is going to be there जिसको मिर्ची तो लगेगी, और किसी को मिर्ची लगी भी है ऐसा। मोदी जी के भक्तों को। That viewpoint, which I think education does give you at least the chance to look out for a different viewpoint. जब मैंने काजोल को ये बात कहते हुए सुना तो मुझे इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं लगा, क्योंकि ये बातें हर परिवार कहता है ना, आपके भी मन में है ना। पर बीजेपी आईटी सेल ने इस रियल लाइफ एक्टर की स्टेटमेंट को रियल लाइफ एक्टर के ऊपर अटैक मानकर अपनी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज यूज करके काजोल को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। Kajol trolled as school dropout for saying that our politicians have no educational background. Bro, you can say that, right? If you don't have education, that's called freedom of speech. You don't need to have a degree to say something. Oh my God, these people doesn't understand this. जब मैंने अभिजीत चावड़ा का expose किया, people are like, you don't know about this, you don't know about this. Not required. If I can expose the propaganda, I can expose it. That's it. Fair enough. बड़ी खबर, काजोल के अनपढ़ नेता वाले बयान पर बवाल मच गया है। और इतना बवाल मचाया कि काजोल को अपनी सिंपल सी ओपिनियन देने के लिए माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। Okay, let's see what she tweeted. I was merely making a point about education and its importance. My intention was not to demean any political leader. We have some great leaders who are guiding the country on the right path. Absolutely. Let's go. देने के लिए माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। तो इससे प्रूव हो गया कि न्यू इंडिया में एजुकेटेड बातों के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, सही मायने में एजुकेशन का मतलब नॉलेज और विजडम हासिल करना है। कोरोना के टाइम पता चला ना इनकी कीमत क्या है। अगर आप अपने शॉर्ट अटेंशन स्पैन की वजह से भूल भी गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कोविड पैंडेमिक के वक्त रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने जनता के साथ क्या खिलवाड़ किया था। 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई, 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध
पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। बस अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना। ना सिर्फ उन्होंने जनता को ऐसी अनसाइंटिफिक टाइमलाइंस दी, क्या टाइम था बॉयज, क्या टाइम था। अनसाइंटिफिक Okay. इलाज के सजेशंस दिए। साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने का सुझाव मतलब जितना फेक ये रिलीजियन है, जितना फेक हिंदू रिलीजियन है, उतना ही फेक इसका कर्मकांडी है। उसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है। कुछ भी करो, हवन करो, ये करो, वो करो, मतलब माइंडलेस स्टफ करो, ताकि मतलब आपको मन को शांति मिले। कैसे भी, फॉर नो रीजन यू आर गेटिंग मन का शांति, ताकि वो कहाँ से आएगा फिर मन का शांति। जनता को दिया है। तो एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम देखो, she is a terrorist. मुक्ति पाएंगे। भाजपा विधायक सुमन हरिप्रिया ने विधानसभा में कहा कि कोरोना वायरस पर अगर गोबर का प्रयोग किया जाए तो लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घोष, उन्होंने एक बयान में कहा था कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस सहित हर तरह के वायरस से लड़ने की शरीर की इनके पास और कुछ आइडिया तो है नहीं, तो गोमूत्र, गो का गोबर और गो तस्करी, और जो भी हो सकता है गो रिलेटेड, एवरीथिंग दे आर इन, बट दे हैव नो आइडिया ऑफ कि वहां से कोहिनूर भी निकल रहा है, वहां से कोरोना भी ठीक हो रहा है। अपने सर पे लेके क्यों नहीं धो रहे हैं लोग? तो इनको सर पे लेके आना चाहिए ना कि देखो ये हम लोग कोरोना सर पे लगा के आए, सॉरी गोबर सर पे लगा के आए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक तरफ जहां हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ने रामदेव की फर्जी दवाई कोरोनिल के लॉन्च पर जाकर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दिया, वहीं असम के हेल्थ मिनिस्टर ने सेकेंड वेव स्टार्ट होने से पहले ही कोविड का एंड डिक्लेयर करते हुए मास्क ना पहनने का सजेशन दिया था। कोविड आज का दिन में नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें। और हमारे देश के होम मिनिस्टर और खुद प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन रैलीज में जुटी भारी भीड़ का दिल खोलकर स्वागत किया था। आज क्योंकि बॉयज वो इलेक्शन है, इलेक्शन में लोग तो चाहिए ना, उसमें कोरोना थोड़ी ना आ सकता है। इलेक्शन और कोरोना दोनों का डिपार्टमेंट अलग है, एक मेडिकल है, एक इलेक्शन डिपार्टमेंट, सो बात ही नहीं हो सकता। चारों तरफ ये मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी, ये हमारे यहाँ पे हुआ था, चेक दिस पहली बार देखी है, जहाँ पे ये आके दीदी, ओह दीदी स्टॉप्स एंड कितना कचरा, मतलब इतना पॉलिटिकल कचरा किए ना इन लोग आके, कि इतना स्टैंडर्ड गिरा दिया है पॉलिटिक्स का कि लोग सिर्फ एक दूसरे को ताना देने के छोड़ के और गाली देने के छोड़ के और कुछ बचा ही नहीं है। देयर इज नथिंग, बिकॉज इनके साथ कौन माइंडफुल टॉक करेगा? कोई सेंसिबल टॉक कैसे कर सकता है जो गोबर अपने सर पे लगा के घूमते रहते हैं, तो मूत्र पीते रहते हैं। वी कांट डू एनी सेंसिबल टॉक्स विद दिस गाइज। कुछ भी बोलो तो जय श्री राम कर देंगे। साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने कोरोना के सेकेंड वेव के स्वागत में कुंभ मेला करवाकर करोड़ों लोगों की भीड़ जुटाई और कोविड का सबसे डेडली वेव इंडिया में फैला दिया था। और उसके बाद हुई ऑक्सीजन क्राइसिस को झूठा बताकर अपनी अकाउंटेबिलिटी और असली कोविड के डेथ नंबर्स दोनों से पल्ला झाड़ लिया था। देखिए ऑक्सीजन अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता। एक ऑनेस्ट पत्रकार, और ये मोटू बोल रहा है कि पॉलिटिकल रोना धोना कर रहा था जिन लोग को ऑक्सीजन चाहिए था। लोग मर गए घाटों में, जहाँ पे लाश बहा दिया गया, घाट में दफना दिया गया, और ये पॉलिटिकल रोना धोना कर रहा है। इनको कोई मतलब ही नहीं है कि आम जनता के साथ हो क्या रहा है, क्या चाहिए उनको, क्या जरूरत है। दे डोंट बॉदर एंड दे नीड टू गो। दैट्स फॉर ट्रू। इस बार या नेक्स्ट बार we need to see that। पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता। एक ऑनेस्ट रोक क्या सकते हो? और पार्ट टाइम कवि ने सरकार की इन हरकतों पर एकदम सही कहा था कि धुंधमय आकाश का मौसम है मेरे देश में और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, और शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा अब, और इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में, और चुप रहो या कीर्ति गाओ और तुमको पूरी छूट है, और अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में। इसलिए एजुकेशन की डिग्री हो ना हो, पर पॉलिटिकल पावर में बैठे लोगों की समझदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सर्टेन डिग्री होना पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है। और जब ऐसा होगा तभी मैं ट्रूली कह पाऊंगा, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कभी मत भूलना। हाँ गुरुदेव लुक्स, चेक आउट द गुरुदेव लुक्स। देख रहे हो, जब मोदी जी यहाँ पे आए थे बंगाल में, he put on this attire to make us look कि देखो सेकंड गुरुदेव जी आ गए। देख रहे हो,
विश्व गुरु बनाने वाले थे हमें, और ये कहाँ पहुंचा दिया हमें? क्या काल था? लेट मी चेक, लेट मी रिमेम्बर, क्या सुनहरा काल या क्या था, क्या चला था? अमृत काल। अमृत काल से अभी हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं कर्तव्य काल में, बिकॉज अमृत तो मिला नहीं किसी को, अमृत ये पान कर गए सारे, तो हमें कर्तव्य करने के लिए छोड़ दिए, बोला कि आप लोग करो कर्तव्य अपने। लेट्स गो, शेम ऑन दिस गाय। ये साहब राजस्थान के सवाई ये माधोपुर से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है। कहा था शंख बजाने से कोरोना नहीं होता, कहा था शरीर पर मिट्टी लगाने से कोरोना नहीं होता, कहा था आग जलाकर उसके बीच में बैठने से कोरोना नहीं होता, लेकिन इन जनाब की हर तदबीर बेकार हो गई जब ये सब करने के बावजूद वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। अमेजिंग अमेजिंग। फॉर इंस्टेंस आई विल टेल यू कि कोरोना में इन लोग इतना ज़्यादा प्रचार कर रहे थे कि ये करो वो करो, जब इन लोग थोड़ा बहुत सुना कि हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल एंड अल्कोहल किल्स जर्म्स, दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग कि ड्रिंक अल्कोहल सो दैट आपको कोरोना नहीं होगा। कुछ भी करो इनके साथ, इनके दिमाग में भूसा भूसा छोड़ के और कुछ नहीं। भूसा बिकॉज गो स्टफ्स, राइट, गौ का स्टफ है वो, मतलब खाना है, खाद्य है, सो इसके दिमाग में सिर्फ भूसा है, दैट्स इट। नेक्स्ट एक और देखते हैं, आई हैव सम प्रिपेयर्स फॉर यू। ये कौन सा है मैंने देखा नहीं है, बट लेट्स चेक दिस। बेटर बी फनी बॉय ब्रो। बागेश्वर बाबा पर सीमा हैदर ने कह दी अपने दिल की बात। अच्छा, तो क्या बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? क्या चल क्या रहा है? पाकिस्तान की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी दुनिया भर में छाई हुई है। उनके गांव में मीडिया वालों का तांता लगा हुआ है। वो दोनों लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। देखो ये होता है पबजी खेलने से। दिस गाय फ्लर्टेड विद दिस चिक फ्रॉम पाकिस्तान एंड वो अपने घर बार छोड़ के इंडिया आ गई पबजी खेलने के लिए इसके साथ। वी हैव अ वेरी फनी क्लिप। कल हम लोग जब पबजी खेल रहे थे, एक कपल आया था। It was a very funny clip. I'm going to share it with you later. But yeah, this is the same thing going on. PUBG lovers from Pakistan to India. जिंदगी से जुड़ी बातें देखिए क्या बोल दिया इसने। अब सीमा ने बागेश्वर बाबा को लेकर अपने दिल की बात कही है। दिल की बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी जवाब आया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सीमा ने कहा कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री उनको काफी पसंद है। उनको उनकी स्माइल अच्छी लगती है। उनका बहुत ज्यादा मन है कि वो दिव्य दरबार में जाए, लेकिन वो मजबूर है। उनको कोर्ट से जिले को नहीं छोड़ने का आदेश मिला है। सीमा के मुताबिक उनको वेल प्लेड गर्ल। मतलब द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बाबा जो है उसको शी इज टेकिंग साइड ऑफ दैट गाय ताकि उसको इंडिया में वीजा मिल जाए या फिर उसको स्टे मिल जाए, गेस, राइट? सो इट्स अ वेल प्लेड, आई मीन ब्रिलियंटली प्लेड। भरोसा है कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा और वो अपने पति के साथ भारत में रहेंगी। वो अब भारत में ही जीना मरना चाहती हैं। वहीं सीमा हैदर की इच्छा पर बाबा बागेश्वर की तरफ से भी बयान आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर वो आई तो पर्ची जरूर निकालूंगा और बागेश्वर धाम से ही उन्हें आगे का रास्ता मिल जाएगा। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार 12 जुलाई। ये गवर्नमेंट, ये आदमी ही है गवर्नमेंट, है ना? आजकल जो हालत होकर रखा है, इस तरह के आदमी गवर्नमेंट को चला रही है। ये बाबा शाबा जिन लोग हैं आरएसएस में बैठे हुए, मंदिर में बैठे हुए, योगी जी तो है ही मंदिर से उठ के आए, इन लोग ही है जो आजकल गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो इनके पैर पड़ना पड़ेगा ना। अब मोदी जी को प्ली करोगे, मोदी जी तो कोई आवाज नहीं निकलता, उसका साइलेंट पीएम, राइट ना? उनका रेसलिंग के प्रोटेस्ट में कुछ निकला ना, मणिपुर जल रहा है तो कुछ निकला, जा ही नहीं, टाइम ही नहीं उनके पास। ही इज बिजी गेटिंग रूल्ड बाय ऑल दिस बाबाज। सो को नोएडा में लगा था जो 16 जुलाई तक चला। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने पहुंचे, जिससे कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिली। सीमा का भी उनसे मिलने का मन था, लेकिन कोर्ट के आदेश की वजह से वे नहीं जा पाई। आपको बता दें, सीमा हैदर को अवैध रूप से भारत में रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल गईं और फिर वहां से भारत आई। हालांकि कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन जिले को छोड़ने से पहले इलीगली आप पाकिस्तान से नेपाल कैसे पहुंच जाओगे? यू नीड टू क्रॉस इंडिया, राइट? फिर नेपाल से इंडिया घुसे हो, राइट? बट स्टिल उनको पुलिस को बताना होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक मुकदमा चलता है वो सचिन के घर में ही रहेंगी। इसके बाद अदालत तय करेगी कि वो यहाँ रह सकती हैं या उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए।
वहीं कुछ लोगों के सीमा के जासूस होने का भी शक है। यूपी एटीएस इसकी जांच कर रही है, साथ ही सीमा पर हर वक्त नजर भी रखी जा रही है। भारत में भी कई लोग सीमा और सचिन के प्रेम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान के लोग भी इस मामले पर खूब भड़के हैं। जहां सोशल मीडिया पर भारतीय लोग उसे आईएसआई का एजेंट बता रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी लोग रॉकी एजेंट बोल रहे हैं। अपने आप को ये करते रहो, लड़ते रहो दोनों मिलकर। अब सीमा ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है जिसमें She is trying hard, very hard. उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, मदद भी मिल रही है। पता नहीं पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया है। हर तरह से गलत ही कहा जा रहा है, हर तरह से जासूस या गलत कैरेक्टर बताया जा रहा है। ओके, यू आर रिपीटिंग नाउ। फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। ओके, वन इंडिया, दैट वाज अ रबिश रिपोर्ट एनीहाउ। लेट्स सी और कुछ है कि नहीं हमारे पास फनी, बट या द गर्ल इज टफ, शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड, दैट वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट्स फॉर दैट, गिव हर क्रेडिट्स फॉर दैट। आई मीन अमेजिंग अमेजिंग टैक्टिक्स लगा रही है वो अपना। दिमाग लगाओ भाई लोग, ऐसे ही पॉलिटिक्स करते हैं हम लोग, समझे? इंडिया में ऐसी पॉलिटिक्स चलता है, नथिंग एल्स, नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो। व्हाट यू वेटिंग फॉर गाइस?